आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पोषण से पढ़ाई तक, एक खूबसूरत अभियान। और इस अभियान के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। वो सोच है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को, और उस मुस्तकबिल को 9 महीने तक अपनी कोख में पाल रही उस माँ को कितना मजबूत किया जा सकता है, कितना सेहतमंद किया जा सकता है, और आने वाले कई सालों तक बच्चे में उस ख्वाहिश को पैदा किया जा सकता है कि अगर मैं मजबूत रहा तो ये देश मजबूत रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ज़ोरदार तालियों से सारे मेहमानों का मैं चाहती हूँ कि आप इस्तकबाल करें। टू बिगिन विथ रीना जी, जो मन में पहला सवाल आता है, एंड स्पेशली जिस तरीके की शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, वो कहते हैं ना कि, और अनंत पाई जी कहते हैं ये बात, कि आपको अगर अपने प्रेजेंट को समझना है तो वो कंटिन्यूटी पास्ट के साथ रखना ज़रूरी है। और पूरे इतिहास को आपने बच्चों के लिए कॉमिक के ज़रिए ला दिया है। आपको लगता है कि न्यूट्रिशन, पोषण बच्चों के लिए बहुत बोरिंग चीज़ होती है, ये किया जा सकता है कॉमिक्स के ज़रिए? बिल्कुल। कॉमिक्स मैं कहती हूँ सबसे अच्छी मीडियम है जिसके तहत यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज टू चिल्ड्रन। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि जितने भी बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, इफ़ यू ब्रिंग इट इनटू द कॉमिक्स फॉर्मेट, एनीबडी 8 to 80 children are going to, adults are going to digest that very, very easily. And nutrition being such an important topic today, especially through this program, Poshan and Padhai, I think it is very important that we bring this into children's lives through the medium of comics. See what comics does actually, apart from making boring things easier to understand, it simplifies and gives the message in a very clear, very precise and a very entertaining way. Comics की सबसे बड़ी खासियत है humor. So through humor, we tell the children, we teach the children what is most important for them. We give them messages, important messages. Anshul ji, how would you take this forward? Because Diamond Comics के बारे में हर किसी को मालूम है, और हमने तो बचपन में देखा था, लेकिन children in today's era, can they connect with comics? See, we have almost 66 characters which are all original, and they resonate with the length and breadth of India. Across all over the world अगर आप देखें, हमारे कैरेक्टर्स इंडिया के बच्चे से जुड़े हुए हैं इतने सालों से। जैसे अमर चित्र कथा ने एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है टू स्प्रेड आवर कल्चर, आवर रिच हेरिटेज, एंड इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन वी टुक द मैंटल ऑफ एंटरटेनिंग चिल्ड्रन। उससे क्या हुआ है कि जो कार्टून्स हैं वो एक ऐसे मीडियम में आए इवॉल्व होते हुए जिससे बच्चे उनको देखते हैं, and they connect very fast because they come back from school and the first thing they do is they sit on the bed, have their lunch watching cartoons. So comics and cartoons are a good medium. Sonali ma'am, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ बहुत सारे लोगों के साथ you also work. The unfortunate part is that from the urban area it's moving to the rural area. How can these cartoon characters, or do they have any impact? Have you seen that? One of the assumptions here is that these are very young, impressionable minds, and they are learning very rapidly. So when you reach children later, when they've become teenagers or adults, to first unlearn and then learn a new behavior is super hard. But when you start young, and that is why Sesame, for the last 50 years globally, has worked with young children, because at that point of time, you set the right habits, whether it be food choices, whether it be toilet hygiene, whether it be even any other kind of values, they last for life. We are seeing that parents are introducing tea and biscuits, that is packet biscuits, by nearly 6 months
The weaning of a child happens on packaged biscuits. तो फिर हम बाद में बोल रहे कि बच्चा बिस्किट क्यों खा रहा है, चिप्स क्यों खा रहा है. So let's begin very early on. And I think that's the conversation we need to have. So one side is communicating to children, and the other side, as we're all talking about, how to communicate to parents. And I think starting early is the insight here. किस तरह से हम शुरुआत ही सही करें, बाकी तो it will take care of itself. So rightly, address the problem. अर्चना जी, 3 प है बच्चों की ज़िंदगी में और वो उनको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगते हैं. पहला तो है पोषण, दूसरा है पढ़ाई और तीसरा पेरेंट भी जोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो हर बार लेक्चर ही देते रहते हैं. और दैट इज़ द रीज़न के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ कम अप विद सच ब्यूटिफुल पहल, अभियान आप इसे कह सकते हैं, इनिशिएटिव, वेयर योर ओन फ्रेंड 3.5, 5.5 would come and speak to you. And like Sonali ji mentioned, we have to catch them early before it's too late. Do you think that's the right way to do it? First of all, I would say that this is an exceptional program that Ministry of Women and Child Development has conceived. You need to start early with characters, जिस तरह हमारे दूसरे panelists ने बोला, because the characters actually can relate much better to the kids. But I think these characters also go beyond age. हमको उन्होंने याद कराया कि बैलेंस कि न्यूट्रिशन चैम्पियन कैसे बनना है और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए खाने में. सो आई थिंक इट्स नॉट ओनली जस्ट द चिल्ड्रन बट ऑल्सो पेरेंट्स. जब हम कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर चेंज में स्टोरी टेलिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्टोरीज व्हेन टोल्ड एक्चुअली स्टिक टू योर माइंड, बिकॉज उसमें कैरेक्टर होता है. आप टॉप डाउन बताएंगे न्यूट्रिशन में आपको ये खाना है, वर्सेस जिससे आप रिलेट करते हैं वो कैरेक्टर आपको बताए कि आपको क्या खाना है, आप उसको रिलेट करेंगे. सो स्टोरीज हैव द पावर टू ट्रांसेंड यू इन वेज दैट यू वुड नॉट थिंक. तभी हमारे को स्टोरीज अच्छी लगती हैं, एड्स अच्छी लगती हैं, मूवीज़ अच्छी लगती हैं. दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि एक कौन हमको बताता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हु इज़ द कैरेक्टर हु इज़ टेलिंग मी, डू आई रिलेट टू देम, डोंट आई रिलेट टू देम. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. द थर्ड थिंग दैट आई वुड से इज दैट when you ask me the question about starting young, it's really important because 2 चीज़ें हैं. एक तो हमारे जहन में आ गया शुरुआत से, जिस तरह मैं अपने बच्चों को बोलती थी ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, राइट, रात को भी ब्रश करना. नहीं सुना, डिज्नी में आया एक ब्रशी सॉन्ग तो उनको याद रहा कि भाई अब करना है. सो इट्स जस्ट द वे दैट हु टेल्स यू एंड देन यू ट्राई एंड इनकलकेट द हैबिट अर्ली ऑन. The last thing that I would say is that kids also have amazing pester power. Amazing pester power. उन्होंने अगर suppose कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो parent लेके देगा ही. So it's good that if we can get them to start early, think about nutritive food early. If they start demanding food, अगर बच्चे ने अगर लड्डू मांगा, अगर माँ को नहीं बनाना आता, वो रेसिपी देख के लड्डू बनाएगी और खिलाएगी. So I think it's a good program which is not just about young kids but also about parents and grandparents as well. चमकी, एल्मो, आप हैं? हाय, हम यही हैं. हाय, तैयार है. अरे वाह वाह, बड़े फिट लग रहे हो आप दोनों. थैंक यू. मछली भी बनाई, देखो एल्मो के भी डोले शोले रोज कसरत करते हैं. सच्ची बताओ, कसरत करते हो? हाँ बिल्कुल, और अच्छा खाना खाते हैं ताकि कसरत कर सके. हाँ, खेल कूद से ही तो कसरत होती है. जंप करना, तो टचिंग करना, या रस्सी कूदना, या मंकी लैडर पे झूलना. मैं आपकी कसरत से इतनी खुश हुई हूँ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है. एल्मो, खाओगे? नो थैंक यू. चिप्स का पैकेट भी लाई हूँ. ना क्योंकि एमू को पसंद है स्नैक में अच्छे हेल्दी फ्रूट्स, है ना चमकी? हाँ, चिप्स और चॉकलेट होते हैं सम टाइम फूड, नॉट एनी टाइम फूड. हाँ, पर रंग बिरंगे फल और सब्जियां, कुरकुरे भी होते हैं चिप्स की तरह. हाँ, और सोचो अगर टिफिन बॉक्स में मिले ज्वार का पराठा, रागी के लड्डू, नाचनी वाला खक्कर
बड़ा। चमकी चमकी चमकी, रागी के लड्डू सच में कैसे होते हैं? यम्मी। हाँ, और उसमें नट्स और सीड्स भी हो तो मजा आ जाता है। अच्छा, अभी मुझे सच्ची बात बताओ, भूख लगती है तो क्या खाते हो? पहले चमकी, क्या खाती हो? बैग में क्या है? सुबह मेरे को तो स्नैक मिलता है। देखो, मैं स्नैक बैग में यहाँ पे क्या रखा है, एक एप्पल और एक बनाना, क्रंची क्रंची। एप्पल और बनाना। एल्मो, हाँ, एल्मो को पसंद है। एल्मो के कलर की लाल लाल क्रंची। बताओ क्या? अभी ठंड में बहुत मिलती है। गाजर। हाँ, और पता है, जब एल्मो अच्छे से हेल्दी खाना पेट भर के खाता है तो एल्मो और चमकी का पढ़ाई में भी मन लगता है ना? हम लोग रोज सुबह उठ के यही तो करते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं और फिर एक रंग बिरंगा पौष्टिक नाश्ता खाते हैं कि स्कूल में जाके हम लोग खूब ढेर सारा खेल खेल सके और पढ़ाई भी कर सके। हाँ, जंक फूड से पता नहीं क्यों फिर फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई में, सुस्त हो जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, ये बताओ, कभी कभी तो दिल करता होगा ना कुछ मीठा मीठा खाने का? बिल्कुल, समटाइम फूड हम लोग खाते हैं, बट एवरी टाइम नहीं। समटाइम फूड सिर्फ कभी कभी खाने वाला खाना होता है। हाँ बिल्कुल, और जब अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं तो उसका फर्क भी समझ में आता है ना। हाँ, तब उसका मन करता है ज्यादा खाने का। अरे पता है, हमको स्कूल में कहानी सुनाई थी। 2 एलियंस थे जिनका नाम था यिप यिप और याप याप। ओके। वो लोग प्लेनेट से आए थे और वो लोग खाते थे सिर्फ जंक फूड, और वो लोग इतना सुस्त हो गए कि वो लोग अपने प्लेनेट वापस ही नहीं जा पा रहे थे। हाँ, वो ऐसे सोते रहते थे पूरे टाइम। फिर एल्मो और चमकी ने उन्हें बताया कि अगर वो रंग बिरंगा पौष्टिक खाना खाएंगे तो वो झट से अपने प्लेनेट चले जाएंगे। हाँ, उनके अंदर आ जाएगी एनर्जी, आ जाएगा फोकस और आ जाएगी बहुत सी शक्ति। वाह वाह, बहुत शानदार। मैंने भी वो हलवा और लड्डू खा लिया है और अब मैं सेशन की तरफ वापस जा रही हूँ, जैसे एलियन गया था अपने घर की तरफ। but not least कि एल्मो and चमकी will miss you all too. Yes. We will miss you. Bye चमकी. Bye एल्मो. Bye bye you guys. Surina ji, do you think that these cartoon characters can stand that competition of iPad और एक्शन में सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं? This kind of takes you back in. We all can relate. But do our children relate to them, or will able to once they are introduced to the new, new age entertainment, basically? Most definitely. I think children look for guidance. We always feel that, children, yes, they have their own minds, they have their own individualities, but they always look at you, they look at an adult, they look at a parent, at a teacher for some kind of teaching. If you're listening to a story, you're listening to it because you are getting something from it. So these characters, these lovable characters, it was so wonderful listening to them. They are definitely going to be able to connect with children and relate these messages which are so important. And Anshuji, how about the myths and the misconceptions? Can these comic characters really help children understand that अब तक जो ये कहा गया है, ज़रूरी नहीं है कि तली भुनी चीज़ें unhealthy ही हो? Can that also be done? The myths and the misconceptions. देखो, बच्चे जो हैं वो रिलेट करते हैं हर उस चीज़ से, जैसे उन्होंने बताया कि कंटेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, कुछ भी उनमें जनरेट करता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वो उस चीज़ को एकदम ग्रैस्प कर जाते हैं. और बोला जाता है ना, वी आर वॉट वी ईट. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट वी आर वॉट वी सी, वी आर वॉट वी फील, and we are what we read. We can imbibe the right messages through entertainment, and it does have an impact on their subconscious. It is very true. Whether it's any medium of entertainment, it does have an impact, and comics more so because children really connect with these characters. Reena ji, now taking it forward, yes, we have to eat green vegetables. Yes, it has to be healthy. But can these comic characters help children realize that our land is such rich and diverse and when it comes to nutrients?
and you think that we can bring them back to, you know, not just the burger and pizza and noodles, and bring them back to the laddus and, you know, ragi के लड्डू की अभी बात हो रही थी. Can that be done? Definitely, क्योंकि हम लोग खुद ही अपने कॉमिक्स में we try to keep it to Indian food. When we talk about food, you know, Shikari Shambhu is eating something or Supandi is eating something, we try not to talk about, you know, the current fads. So we take them back to what we heritage, you know, traditionally we are eating. And more than anything, it's the different regions. It's the different regions which have their own traditions of cooking. और उन लोगों को मालूम है कि उनके एरिया में क्या उगता है, you know, the fruits that grow there, the grain that grows there, which actually suits the children of that region. So that is also something that we, you know, tell through our folk tales. कि फलाना अभी कुमाऊन की कहानी है, तो we will talk about the food from Kumaon. You know, we tell the children. So not only do they learn about, you know, different types of dishes, but we can also add this, you know, the usefulness of it. Why do they eat it? The nutrition it provides. So all this is very possible. So we can go back into our heritage, we can delve into tradition and bring out traditionally nutritious foods which have been with us for thousands of years and which we must not forget. And these can come through very clearly in comics. Coming to you, Sonali ji, can you kind of share a few examples from around the world that how, you know, kind of Sesame Street characters have made an impact, especially, you know, when it comes to cause that are more serious in nature? Thank you for this question. 50 years ago, when Sesame was created, the intent was to educate children and reach the last mile. तब television was one of the biggest sources. It just, I mean, मैं 50 साल पहले की बात कर रही हूँ. इंडिया में तब TV, मतलब I remember जब मैं शायद 6-7 साल की थी, तब हम लोग ने ब्लैक एंड वाइट TV पहली बार घर में देखा था. नहीं तो हम नेबर्स के घर में जाते थे TV देखने के लिए. तो तब आइडिया आया था कि बच्चे जो जिंगल्स सुनते हैं, आपको भी अगर मैं पूछूं कौन सा वो ऐड है जो आपको याद रहेगा बचपन की, तो आप मतलब वो वाला जिसमें गाना है या कुछ आप फ़ौरन याद करोगे. तो उस इंसाइट को लेके ये सेसमी स्ट्रीट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बना था और बच्चों को सिखाने के लिए. तो वो जो हम जो से आप देखा अपने एल्मो और चमकी को, तो हर जो एपिसोड सेसमी का बनता है उसमें एक एजुकेशनल वैल्यू होता ही है. दैट इज़ अ मस्ट ऑफ एनी सेसमी वीडियो. तो हमारे जो आपने जो मुद्दे बोले हैं, जो खासकर क्रिटिकल मुद्दे हैं, दे अंडरलाई ऑल आर एपिसोड्स, ऑल आर कंटेंट. जो ये सारे हम बैठे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम एक बच्चे के चेहरे पे हंसी लाए. जैसा अभी सोनाली जी ने बताया कि हमारा अल्टीमेट एम और गोल है बच्चों के चेहरों पर 2 इंच मुस्कान लेकर आना. वी वांट टू सी देम स्माइलिंग. पर ये 2 धारी तलवार है. मतलब वो स्माइल तो हाईली प्रोसेस फूड को देखकर भी हो सकते हैं, है ना, वो मोबाइल फ़ोन को देखकर भी हो सकते हैं. आई वॉज अमेज्ड. इनफैक्ट मैं दुखी हो गई ये जानकर के 10 सेलेक्टेड चैनल्स के 1 महीने के एड्स में पता चला कि 2 लाख एड्स बच्चों को के सामने ऐसी ही रखी जा रही हैं जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जो हैं बच्चों में खाने पीने के आदि कर सकती हैं. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम एंड हाउ डू वी डील विद दिस? The corporates are there to sell their products, but there is self-regulation that is required as well, because you know, they are within the ecosystem, they're running businesses, but one, I would say that you know, governments are there are laws in place. ASCI एक body है which is Advertising Standard Council of India. वो रेगुलेट करते हैं कि किस तरह का कंटेंट हार्मफुल है और नहीं दिखाना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स हैं. कहें तो कॉमिक्स का एक माध्यम है एंटरटेन करना, बट दे आर टेकिंग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से नो, राइट काइंड ऑफ हैबिट्स, राइट काइंड ऑफ
एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और हम अपने माध्यम से हम उसको आगे प्रोग्रेस करेंगे. कॉर्पोरेट्स में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. एट वन एंड देयर बिजनेस, बट दिस इज ऑल्सो दे कमिंग फॉरवर्ड थ्रू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी in terms of how can they work with society as well as communities so that they can improve and they can go give back to the society, give back to the communities. Thank you so much for joining us. रीना जी, अंशुल जी, सोनाली जी, अर्चना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.